What is the best diet for like discus? वहां पे जाके रिलैप्स हो गया, then it is not right on my part. I'm not knowing the source. I would not recommend bloodworms. Observe and understand कि उसको करना क्या है. So I'll ask you many questions. लोग उसी में पेशेंस खो देते हैं, बोले इतना क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है भाई, मेडिकेशन बता. I have returned people their fishes worth even after 6 months. क्या बोल रहे हो? अगर मेरी एक मच्छी बीमार होती है तो वो पूरा यूनिट From that, in fact, मैंने it might पूरा unit- jeopardize hobbyist tanks as well. पूरा मैंने मयूर देव को बोला है, मैंने डिस्कस निंजा को बोला है, मैंने प्रथमेश को बोला है, मैंने ट्रैवल विद गुरु को बोला है, मैंने लश एक्वा को बोला है. तो एक दफा जरा मेरा चैनल आप वो वीडियो जो मेरे घर पे आज भी टैंक्स है. मैं आज भी उनको उतने ही शिद्दत से करता हूँ जैसे मैं एक हॉबिस्ट था तभी करता हूँ. आई एम स्टिल अ हॉबिस्ट, आई विल डाई अ हॉबिस्ट. क्योंकि मुझे भी देखना है मेरा पैसा है किधर. ये लोगों से मुझे मिला. हाँ सॉरी, कंटिन्यू. तो दोस्तों, आज जैसे कि ऑनीज एक्वा का और एक नया वीडियो में आज का गेस्ट है किंग ऑफ इंपोर्टेड डिस्कस एंड इंटरनेशनल जज, द लिविंग लेजेंड मिस्टर अनिल डिसूजा ऑफ एक्वा डिस्कस. तो हेलो अनिल जी, वार्म वेलकम टू ऑनीज एक्वा. अनिल जी, like एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके डिस्कस हॉबीज ऑल टाइम वो लोग लाइक धुन में रहते हैं, ऑल टाइम दे आर इन डाउट एज टू रिगार्डिंग फीडिंग ऑफ ब्लडवर्म टू डिस्कस. और जो लाइक मेनी एंड मोस्ट पीपल वी हियर खिलाता है, पर लाइक बहुत सारे वीडियोस बोलते हैं इट्स नॉट राइट. सो व्हाट इज योर टेक ऑन रिगार्डिंग? See, I can talk about myself, मेरा एक्सपीरियंस और मेरा व्यू. बाकी लोग क्या करते हैं सर, एब्सोल्युटली इट्स their व्यू चॉइस. सो फॉर मी अ वर्म इज अ वर्म, irrespective what it is. Okay, yeah, over a period of time if you culture and feed it, or you culture it in the right, with the right ingredients of feed, I believe you can do it. But as of now, if I'm not knowing the source, I would not recommend bloodworms. People are doing sterilized thing and they're claiming it's quite safe, and even hobbyists have said that it's safe for them. Works for you, fantastic. For me, I am against it. Always been a hobbyist, and I avoid bloodworms or tuberculous worms or any worms in any kind of live feed. I avoid. So like why do you avoid it? What's the reason behind it? See, as I said, worm for me is a worm. कीड़ा ही रहेगा मेरे लिए. पता नहीं. So parasites to like bacterial Yes. infections, these things. Yeah, can pathogens. come out of them. Worms can carry pathogens, and I am quite scared, if you can say, or maybe I hesitate to use them, and that's my personal choice. You use it is your personal choice. If you ask me for an opinion, I'll give you my opinion. To take the opinion or no is up to you. Yeah, absolutely. So, and you meant it about all sort of bloodworms or specifically only live bloodworms? Worms, again my repetitive answer is worms are From worms. live to frozen to... Yeah, I do use Australian black worms, Achha. and I make sure before the batch comes in it's from the right source. Australian black worms are cultured worms, and but I don't use it a lot for the discus. It's like a treat. I use it a lot for the maybe once in 3 days I use for the Altum angel and the Dantum angels. The whatever angels we keep. I do use those Australian black worms. Now maybe I've got a, what do you say, the source of Australian black worms which I confirm, and if it comes from the right source, they are safe so far for me. So I would be using it till I don't get results. I mean till I don't get negative results. If they're giving me results, I'm using them. Yeah, I'm very sure as to definitely being you such an iconic person.
बट स्टिल हमारे जो नया पीढ़ी के एकदम नया हॉबिस्ट आ रहे हैं, जस्ट इन केस मैनी ऐसे भी होंगे कि शायद आपको वैसा जानते नहीं भी अगर होंगे, तो लाइक ऐसा कुछ आपके खुद के बारे में बोलिए जो कि शायद हम लोग जनरल पब्लिक जानते नहीं हैं, जस्ट अबाउट योर सेल्फ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग जानते नहीं। आई एम अ पुअर सिंपल मैन एज ऑलवेज, और फॉर अ डिस्कस हॉबिस्ट और अ डिस्कस ट्रेडर और अ डिस्कस ब्रीडर और whoever it is, I would have a soft corner for them because I have been a hobbyist. I am a trader. I will never get into breeding, but I am a discus raiser. So ये चीज़ मेरे दिल के करीब है और इससे जुड़े हुए लोग मेरे दिल के करीब हैं, इरिस्पेक्टिव वो कौन है क्या है। नए हॉबिस्ट आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। मेरे पास जितना भी नॉलेज है डिस्कस रेस करने को, डिस्कस कीपिंग का, मेरे पास जो भी नॉलेज है, गुड बैड अगली, आई एम विलिंग टू शेयर। जैसे आप बोल रहे हैं कि फीडबैक है, मुझे भी ऐसा फीडबैक मिलता है कि पीपल से दैट आई एम रूड एंड एरोगेंट एंड नॉट अप्रोचेबल। I would find that very funny actually कि maybe जैसा सोचा था, like you probably so chilled out, so cool, like मैंने unimaginable to be very honest. So you're saying I'm not chill and cool? You are so chilled and so such a cool person. I didn't expect you to be that cool also, to be very honest. See, I got. You're such a friendly person. मैं तो खुद थोड़ा हैरान था कि आप इतने friendly भी हो. I'm obviously. No, this is what I am. You ask me who's the real Anil? Anil. You have met the real Anil. हाँ, मैं थोड़ा सा loud हूँ. मेरे को थोड़ा गुस्सा आता है. ठीक है, it's a human trait. वो होता है. But then. किस चीज़ पे आपको गुस्सा आता है? वो ऐसा कुछ भी नहीं, अभी कभी भी गुस्सा आ सकता है हमको। हमको डिस्कस का छोड़ के दूसरा कुछ पूछते रहोगे इंटरव्यू में आके तो हमको गुस्सा आता है। ये गुस्सा हमको आता है। अभी आपको वही बोला मैंने, नया स्टॉक्स आया, मैं आपको क्वारंटाइन में जाने नहीं दूंगा। एम आई राइट? ट्रू। ये वाले यूनिट में जहाँ पे मेरे फिशेस सेटल्ड है, यू आर मोस्ट वेलकम। सो आई डोंट थिंक कि अगर मैंने एक अमाउंट का एक इतना स्टॉक लेके आया हूँ एंड आई जेपरडाइज दैट just because I want to do a video or just because you've come from far, that is wrong. Because it's of course it is money, but then अगर मेरी एक मच्छी बीमार होती है तो पूरा यूनिट from that in fact मैंने it might पूरा यूनिट jeopardize hobbyist tanks as पूरा यूनिट ही होता है। और अगर मैं वो ट्रीट करके मेरे पास उतना कॉन्फिडेंस है कि मैं ट्रीट करूँ फिश को, ऑलराइट करूँ और वो एक हॉबिस्ट को दूँ और उसके ऊपर वहाँ पे जाके रिलैप्स हो गया, then it is not right on my part. absolutely ठीक है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में आई हैव रिटर्न्ड पीपल दे आर फिशेस वर्थ इवन आफ्टर 6 months. क्या बोल रहे हो? मैंने उस पर आर्ग्यूमेंट नहीं किया है. ही वॉज नॉट हैप्पी. आई सेड गिव द फिश बैक, आई विल पे यू. ऐसा तो कोई करता ही नहीं है, तो हाउ मैंने इतना जेनरस, इतना बेनेवोलेंट आप कैसे? जैसे आपको फीडबैक मिला, मेरे पास बहुत पैसा, आई एम अ मनी मैन. Okay. So it is so many new things about it is not about the money part. It is about a person showing trust on me and not getting the mistake. किसी का भी हो सकता है, उसमें किसी का भी मिस्टेक हो सकता है. वो फिशेस मैंने अपने पास लेके आया. I observed them, I kept them, I did not medicate them. I kept them and it's with some breeder who's successfully breeding those fishes. जगह का प्रॉब्लम हो सकता है, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम, बहुत कुछ हो सकता है. But then if you are not happy, you are not happy. And if I can get you that happiness back, see, पैसा आज मेरे हाथ में, कल तुम्हारे हाथ में. पैसा सब कुछ नहीं होता है. अच्छा, तो अनिल जी, आपका जर्नी को लेके हमारे जो नया पीढ़ी, नया हॉबिस्ट है, डिस्कस हॉबिस्ट स्पेशली, आपको जानना चाहेंगे राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ स्क्रैच, कहाँ से कैसे, कौन समय कैसे आप स्टार्ट किए थे, एंड नाउ हाउ यू हैव कम टू राइट एट दिस जो मुकाम में आप खड़े हो, ये कैसे, ये थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा बोलिए. ये अभी जैसे बोलते हैं ना, मैं एक एग्जांपल दूंगा. इट्स ऑन अ ह्यूमर साइड. सर एंड्रू सो हैज रिटन अ बुक. उन्होंने बुक लिखे, एक लिखा है, 2 लिखा है. तो बुक लिखा है, पूरी अपनी ज़िंदगी का निचोड़ उसमें डाला है. बुक छापा है, बुक बेच रहे हैं. दैट इज़ लाइवलीहुड, बिकॉज पूरी ज़िंदगी का निचोड़ डाला है, तो वो वैसा है. तो अभी जब हम एंड्रू सो को कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आधे में आंसर देते हैं और नेक्स्ट आधा बोलते हैं कि आई हैव मेंशन्ड इट इन द बुक, तो व्हाई डोंट यू रीड इट इन द बुक. ठीक है,
वैसे मैं आपको बोलूँगा, मेरा जर्नी जो स्क्रैच से मैंने चालू किया ना, शायद मैंने मयूर देव को बोला है, मैंने डिस्कस निंजा को बोला है, मैंने प्रथमेश को बोला है, मैंने ट्रैवल विद गुरु को बोला है, मैंने लश एक्वा को बोला है। तो एक दफा जरा मेरा चैनल आप वो वीडियो में से जो बोलता है 1 मिनट में बोल दीजिए। it's very simple, Anirban. Everybody who's into fishes and who is coming from a medium class or a lower middle or a higher middle class family, they start their journeys from gutter guppies to goldfish to bigger tanks, then multiple tanks, and then when their situation supports them, they go to higher class, and then somebody follows their passions like me and बोले कि यार चलो, let's follow the passion, let's get into fishes, let's make it a livelihood, and that's how it is. So मोटा मोटी, So you remained a hobby. I am still a hobbyist. I will die a hobbyist. अच्छा, even still now you I consider am still a hobbyist and I'll die a hobbyist because मेरे घर पे आज भी टैंक्स हैं। मैं आज भी उनको उतने ही शिद्दत से करता हूँ जैसे मैं एक हॉबिस्ट था तभी करता था। आज भी मेरे घर के फिश या मेरे स्टोर के फिश या मेरे क्लाइंट की फिश अगर बीमार होगी, आई गेट रियली अपसेट एंड So you try to help them out in that yes, case, जब वो लोग yes. Now only unfortunate part is that when a hobbyist का मच्छी अगर बीमार होता है तो वो हमको मैसेज करता है। अभी व्हाट्सएप का ज़माना है, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, अब मेरे नोटिफिकेशंस बंद है, सो आई विल गेट टू रीड दैट मैसेज ओनली व्हेन आई ओपन दी व्हाट्सएप। और उसमें अगर देरी हो गया, जैसा आई टोल्ड यू, मेरा पेशेंस लेवल अलग है, आपका पेशेंस अलग है। आपने मेरे को मैसेज किया और आपको रिप्लाई तभी का तभी नहीं मिला, मे बी यू विल गेट लिटिल बिट अपसेट, मे बी यू विल वेट फॉर मी। The best is if you send me a message and I don't reply 5 minutes, and if it's an urgent situation, pick up the call on me. मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे मत करो। अच्छा, ऐसा केस कंडीशन में आप क्या करते हो? व्हाट इज योर एक्चुअल नेचुरल रिएक्शन कि जब कोई हॉबिस्ट मानिए आपसे डिस्कस नहीं लिए, ही डिडंट परचेज फ्रॉम यू, आपसे नहीं लिया, पर he has approached you for help कि कुछ इलाज चाहिए, some sort of illness हुआ and all that, then what is your reply to those hobbyists? मैं फिश सबसे पहले तो ये पूछूंगा उसको, भाई मेरे को एक वीडियो भेज, मुझे विजुअल के बगैर मैं बोलूंगा नहीं। You won't refuse him कि no, why should I refuse him? Why should I refuse him? Okay. That's what I'm saying. मेरे पास जो भी है मैं कर सकता हूँ वो करूँगा, ठीक है। To take it or not to take it is सामने वाले का जजमेंट, ठीक है। मेरे को पता चलेगा अगर मैं मेरा ट्रीटमेंट में एक बताऊंगा कि ओके फाइन, एंड आई एम समबडी हु वुड नॉट वांट टू मेडिकेट द फिश द वेरी फर्स्ट साइट आई सी द फिश। इफ द फिश इज नॉट डूइंग वेल, इफ द फिश इज एब्सोल्युटली नॉट डूइंग वेल, आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड, ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड कि उसको करना क्या है। सो आई विल आस्क यू मेनी क्वेश्चंस। कोई लोग उसी में पेशेंस खो देते, बोले इतना क्वेश्चंस क्या भाई, मेडिकेशन बता, लेकिन जब तक मुझे नहीं पता है कि वो क्या है, बिकॉज एक टैंक में 2 फिश सिमिलर बिहेव कर रहे हैं, उनका प्रॉब्लम्स अलग हो सकता है। सो टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट आई एम नॉट वेरी श्योर टू सजेस्ट अ मेडिकेशन, आई विल नॉट डू इट। तो उल्टा फिश का सत्यानाश होता है। एब्सोल्युटली। तो दिस इज माय पॉलिसी एंड दिस इज व्हाट आई डू, irrespective you bought a fish from me or no. I can share a screenshot with you wherein a person has been asking for my fishes, the price, the size and everything for so long, and I've been patiently replying to him, and just a few days back he said, honestly sir, आप मेरे को हर मेरे messages को reply करते हो, मेरे को price बताते हो, लेकिन मैं afford नहीं कर सकता हूँ आपका fishes, but one day I will afford, and that day I'll come to your store. मैंने उसको इतना ही बोला कि भाई to come to my store you don't have to buy a fish. This I have been telling everybody. Come, speak to me, fix up a time, come to me. बैठते चाय पीते, डिस्कस देखते, that's it. कोई ज़रूरी नहीं आपने डिस्कस लेना ज़रूरी है मेरे से। You can always come. तो अनिल जी ये बोलिएगा ना कि ऑनेस्टली बंगाल में हम लोग को कहा जाता है, कोलकाता एंड बंगाल में, कि एज इफ मुंबई में कि आप लोग को बहुत ज़बरदस्त यूनिटी है, भीतर में पता नहीं हो ना हो, मतलब वो दिखता ही नहीं है यूनिटी। हम लोग का बंगाल में एकदम यूनिटी नहीं है, और आप लोग का मुंबई में बहुत ज़बरदस्त यूनिटी है। पर एक्चुअली क्या वैसा ही है क्या? यानी मुंबई में बहुत डिस्कस फ्रेटर्निटी में बहुत ज़बरदस्त यूनिटी?
यस है, मतलब मुझे एक सेकंड भी सोचना नहीं है उसके बारे में। व्हेन इट कम्स टू बिजनेस कंपटीशन है, व्हेन इट कम्स टू अ फर्टर्निटी देयर इज यूनिटी। लास्ट ईयर अगर शायद आपने डिस्कस निंजा का एक वीडियो देखा होगा जहाँ पे द होल डिस्कस कम्युनिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड, हम सब मोहम्मद अली रोड पे, जहाँ पे मोहम्मद अली रोड पे आप शायद जाओगे अजीज़ के वहाँ पे हम लोग साथ में एक इफ्तार पार्टी किए थे। दैट वाज लास्ट ईयर ड्यूरिंग रमदान सेम टाइम। सो हर एक ट्रेडर, ब्रीडर, हॉबिस्ट, काफ़ी हॉबिस्ट लोग भी थे, हम लोग सब साथ में थे। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन अ फर्टर्निटी कम्स दैट्स द यूनिटी। डू यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ रिग्रेट्स इन योर लाइफ? कुछ भी रिग्रेट है लाइफ पे, मे बी रिगार्डिंग टू शायद आप कुछ चीज़ पे कुछ और कर सकते थे, मे बी थोड़ा बेटर कर सकते थे, या तो मे बी एनी सॉर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स विद पीपल बोलिए, और एनीथिंग, कोई कुछ भी चीज़ लेके आपको कुछ रिग्रेट है भीतर में, कुछ जो बोलता है आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट हिंदी वर्ड, दुख है उसके लिए, दुख आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ आपको मन में है एकदम दिल का गहराई में जिसको है वो उधर ही है और उधर ही रहेगा। ओके, तो वो निकलेगा नहीं बाहर, वो बाहर में आएंगे नहीं। बट हाउ आई लुक एट इट अगेन एज आई सेड कि वो एक शायद ट्यूशन क्लास था मेरे लिए, है ना, एक लेसन सीखा, और अगर उसमें फिनेंशियल लॉस हुआ है तो ट्यूशन फीस था, इमोशनल लॉस हुआ है तो फिर मेरा बैड लक था, एंड उस पे मैं अटक के नहीं रहा। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आप अगर कोई चीज़ को रिग्रेट करते हो तो आपका डिसीजन, रिग्रेट इज समथिंग दैट वन शुड नॉट डू, बिकॉज इफ यू रिग्रेट यू आर स्टक देयर। तो अनिल जी, ये जानना चाहेंगे कि कोई आपका इधर में, आई एम वेरी श्योर, लोकेशन तो बतलाने का ज़रूरत नहीं है, इन मुंबई कोई मुंबई का कोई फिर भी आपका स्टॉक पॉइंट को अगर जानते नहीं है तो आपका लोकेशन थोड़ा बोल दीजिए। मैं अभी फ़िलहाल मेरा जो स्टोर से मैं डिस्प्ले करता हूँ और डिस्पैच करता हूँ वो अंधेरी वेस्ट में है, क्लोज टुवर्ड्स लोखंडवाला है। एंड कैसे आएंगे कहीं जगह से भी, योर नियरेस्ट कुछ लैंडमार्क या? मेरा एड्रेस गूगल पे है, एंड इनफैक्ट मैं इसीलिए एड्रेस या लोकेशन नहीं बताता हूँ क्योंकि आई डोंट वांट पीपल टू गो बैक डिसअपॉइंटेड। समटाइम्स आई एम हियर, समटाइम्स आई एम एट माई अदर फैसिलिटी, समटाइम्स आई एम नॉट देयर एट द स्टोर, समटाइम्स आई एम नॉट इन टाउन। तो अगर एक जिसको भी आना है, मेरा नंबर आप फ्लैश कर दीजिए, जो नंबर फ्लैश हो रहा है, प्लीज़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके पूछ लीजिए या आपका टाइम बता दीजिए। इफ़ आई कैन मेक इट एट दैट टाइम टू द स्टोर जहाँ पे मैं डिस्प्ले करता हूँ, यहाँ पे यू कैन कम। सो मोटा मोटी हम है अंधेरी वेस्ट, मोस्ट वेलकम। इफ़ नॉट आई विल गिव अवर टाइम, लेट्स मैच द टाइम। आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू द स्टोर। आप टाइम फिक्स कर लिए एंड इसमें, एंड कनेक्टिविटी मेरा मेट्रो से भी है, कनेक्टिविटी मेरा ट्रेन से भी है, एंड अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे तो गूगल मैप डाल ही सकते हो। जस्ट इन केस फिर भी कोई आपका नंबर नहीं जानते, दे वांट टू कांटेक्ट यू, आप फ्लैश करते रहना मेरा नंबर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, अवेलेबल ऑन द सेम नंबर ऑन व्हाट्सएप एज वेल एज ऑन कॉल्स। तो दोस्तों, इस तरफ से मैं बहुत ही श्योर हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बिल्कुल गजब ही लगा होगा, तो ज़रूर लाइक और शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मेरा चैनल ओनीज एक्वा को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अनिल जी को भी एक स्पेशल थैंक्स कहते हुए फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई वाइंड अप दिस वीडियो। नमस्कार, नमस्ते।